स्वागत है ना, उसमें क्या। आपको पता होगा, वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी देश में पहले शख्स है, राजनीतिक नेता जी। उन्होंने कहा था कि कश्मीर को मुख्य धारा में लाने की आवश्यकता है। ये 370 धारा खत्म करने की बात उन्होंने की, मांग करते रहे। आखिर वो मांग 2019 अगस्त में हुई। इस मांग के लिए कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन जिसके लिए हमने 370 धारा खत्म की, वो जो कारण थे वो आज तक नहीं साबित हुए सही। क्योंकि हमने चाहता हिंदुओं का पुनर्वसन, हमने चाहता आतंकवाद खत्म हो जाए, हमने चाहता कश्मीर की जनता मुख्य धारा में आनी चाहिए। आज भी नहीं हुआ। ये तो खंत है ना, वो छोड़ो। कानून सही था गलत था, चलो ठीक, अच्छी बात है, कानून सही था, संसद ने पास किया था। वो एक मसला था कि भाई विधानसभा नहीं है, एक तकनीकी मुद्दा लेकर बात करते थे। लेकिन मांग तो ये थी कि 370 धारा खत्म करनी, तो कब हो गई। लेकिन हम हिंदुओं का पुनर्वसन, एक घर भी नहीं बसा पाए हम 5 बरस में, और एक भी हत्या हमने रोक नहीं पाए। आज भी कश्मीर के जो हिंदू बचे हुए हैं, जो सरकारी नौकरियों में हैं, वो बार बार हाथ जोड़ रहे कि हमें वहां से निकलकर सीधे जम्मू या कहीं और ट्रांसफर कर दो। तो उसके लिए आपके कैप में फेदर है क्या? कोई आ गया, कोई कैप्शन मिल गया, क्या कहूँ, बख्शिश पाया क्या आपने? नहीं पाया ना। वो हमारा दर्द है। दर्द 370 धारा खत्म नहीं, तो आपने मांग की थी, सही बात है, लेकिन जिस कारण जिसके लिए की थी वो आज तक सही साबित नहीं हुई। A lot from the Supreme Court, and we believe that Supreme Court will rightly uphold the Constitution as well as the sentiments of the people. All rights of the people of Jammu and Kashmir, which were protected earlier with regard to land and jobs, they were abruptly, unilaterally and democratically taken away. His state was downgraded and disbanded, divided into 2 UTs, and elections have not been held for the last 5.5 years, more than 4.5 years after the abrogation of Article 370 also. Ladakh got a UT, but you are ready to discuss certain measures, safeguards for land and jobs and their identity, but you are not ready to discuss that for Jammu and Kashmir, the rest of the UT. It was one state. So people demand restoration of statehood, early elections, democracy is not there, and what is happening on Article 370, that will be seen. We can only comment after the judgment comes. We respect the rule of law at the Supreme Court. People have high hopes from the Supreme Court. Ultimately, let's see what is happening. There will be a large section of people, how large I cannot say, but a section of people in J&K who will not be happy with this judgment, who will be very unhappy. To them, my sincere advice is that they should accept the inevitable, and they should accept the fact that now this has been done and the Supreme Court has upheld the action, and therefore there is no point now unnecessarily hitting their head against the wall. Now my suggestion is that they should turn their energies towards fighting the next elections. That is where the people should now be motivated, instead of any negativity developing. That is my personal, as not only a well-wisher of the state, as the state itself, as you know, my name was mentioned in the judgment. Without that proclamation, the rest of the things wouldn't have been done. So, you know, I am very much part of it. So as a state person myself, I'd like to urge that people should now accept this gracefully. Thank you. Sir, there are many leaders, sir, who is saying that we are under house arrest, sir. How do you... My dear boy, I am in my own house now. I have no idea what's happening. I cannot comment. और जो यूनानिमस जजमेंट थी, ये सुनकर बहुत निराशा हुई, बहुत अफसोस हुआ। मैं शुरू से ही कह रहा था कि 2 अदारे हैं जो इसका फैसला कर सकता है, एक पार्लियामेंट, मरकजी सरकार, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट। जाहिर है मरकजी सरकार करती नहीं, उन्होंने तो आर्टिकल 370 को ख़त्म किया, कानून बनाकर नया। अब ये आखिरी हमारी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट इसमें सुनाई करे और इसका फैसला सुनाए। 3 महीने 4 महीने इस पर बहस हुई पार्लियामेंट के अंदर, और मुख्तलिफ
वकला ने अलग अलग पार्टीज़ को और रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को रिप्रेजेंट किया, और उसके बाद जो आज यूनानिमस फैसला आया, उससे मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर के सभी लोग, चाहे वो कश्मीर के हों या जम्मू सूबा के, वो खुश नहीं है। मैं आज भी समझता हूं कि ये हमारे रीजन के लिए एक हिस्टोरिकल चीज़ थी। हमारे जज्बात जम्मू कश्मीर के लोगों से इससे जुड़े थे, चाहे वो 370 हो या 35A हो, जिस 35A को महाराजा हरि सिंह ने 1925, 1927 और 1928 में बनाया था कि बाहर वाला न नौकरी कर सकता, न बाहर वाला ज़मीन खरीद सकता। और जब हमारा आईन बना तो 35A की शक्ल में उस महाराजे को फैसले को आगे बढ़ाया था। तो आज वो भी ख़त्म हो गया, दोनों चीज़ें ख़त्म। इससे हमारी स्टेट की इकानमी को बहुत नुकसान होगा, ज़मीनें महंगी हो जाएंगी, पूरे हिंदुस्तान के लोग जम्मू और श्रीनगर आएंगे। हमारी यहाँ कोई बड़ी इंडस्ट्रियाँ नहीं है कि जिसमें हज़ारों या लाखों लोग काम करें। हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है टूरिज़्म, और वो लिमिटेड लोगों के लिए है। हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर की है नौकरी, सरकारी नौकरी, और उसमें भी अब और बहुत कम नौकरियां होती। ज़ाहिर स्टेट बहुत छोटी है, अब उसमें पूरे मुल्क के 130 करोड़ जो आबादी हमारे में वो अप्लाई कर सकते हैं हर महकमे के लिए। तो हमारे जो नौजवान बच्चे हैं या बच्चियां हैं पढ़ी लिखी, वो और बेकारी हमारी बढ़ेगी, कई गुना और ज़्यादा बढ़े। तो ये तमाम चीज़ें जब रखी गई थी आर्टिकल 370 में, 35A में, 35A में, इन तमाम चीज़ों को नज़र में रखा गया था कि एक बॉर्डर स्टेट है, एक तरफ से चाइना है, दूसरी तरफ से पाकिस्तान है, और कोई यहाँ ज़रिया आमदनी नहीं है, कोई खदाने नहीं है, बड़े कोयले की खदानें या दूसरी खदानें। तो ये चीज़ें आर्टिकल 370, 35A रखना चाहिए ताकि इनको तमाम लाज़िमात मिले। आज उन लाज़िमात से हम कहते हैं कि कोर्ट जाएंगे, हम कह सकते हैं आज के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों का कोर्ट से भी अब भरोसा हट गया है। मैं ये तो नहीं कह सकता कोर्ट से भरोसा उठ गया, लेकिन ये था कि एक उम्मीद थी, क्योंकि कई चीज़ों में हम सब ने, हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान ने पिछले कई सालों से कहा था जो कोर्ट करेगा वो आखिरी फैसला होगा। जैसे बाबरी मस्जिद के बारे में कहा था, इसी तरह से और कई चीज़ों में कहा था और उसको स्वीकार किया था। तो अब हमारी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि वो किसी दल की, किसी पक्ष की, किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, और ख़ास तौर से आज की जो ये बेंच था वो बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही अच्छा बेंच था। लेकिन अब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट किया और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उन्होंने कहा कि 370 है। लेकिन मैं बुनियादी तौर पे कहता हूँ कि इसको ख़त्म करना 5 अगस्त 2019 को ही गलती थी। जल्दी में किया गया था, बहुत जल्दी में किया गया था, और जम्मू कश्मीर के अवाम से तो कोई पूछ नहीं सकता है इतने आम से, लेकिन जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियों से पूछा जाना चाहिए था, तो वो नहीं हुआ। पूछा तो नहीं गया। व्हाट नेक्स्ट पॉलिटिकली, कोई और फंडा है या नाउ प्रिपरेशंस फॉर इलेक्शंस? अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि 30 सितंबर तक इलेक्शन होने चाहिए और उसके फौरी बाद स्टेटहुड देना चाहिए। तो अभी उन्होंने गुंजाइश कुछ रखी नहीं। तो अब ये कह सकते हैं कि ये जो फैसला था कोर्ट का, अब अदालत के खिलाफ तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उससे जम्मू कश्मीर के तमाम अवाम में, हमें, हमारी पार्टी को बहुत मायूसी और अफसोस है। स्टेटहुड तो उन्होंने पहले ही पार्लियामेंट में कहा है, अब उसमें इलेक्शन का भी पहले ही कहा है, लेकिन इस सिलसिले में कम से कम जो सुप्रीम कोर्ट ने एक डेट तय कर दी कि भाई 30 सितंबर से पहले होना चाहिए और उसके फौरन बाद स्टेटहुड होना चाहिए, वो चीज़ तो हमारे हक में है। लेकिन जो दूसरी चीज़ थी
जिससे हमारे जज्बात जुड़े थे या हमारी तरक्की के लिए, हमारी मैशत के लिए, हमारी रोज़गार के लिए, बच्चों के रोज़गार के लिए, या ज़मीन महंगी न हो उसके लिए जो चीज़ें थी वो हमें नहीं मिल पाएंगी।